السلام علیکم. نظر چوہان فوڈس نیو جرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں. وہ میں کنٹینیو رکھوں گا سلسلہ سول بیوروکریسی کی حرام توبیوں پر. دراصل یہ معاملہ بہت سنگین ہے. لوگوں کا ادھر ایک امین صاحب ہمارے دوست رہتے ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان جو نواز شریف زرداری کی ٹوئی مار رہا ہے، انٹرنیشنل ورلڈ میں اپنا نام پیدا کر رہا ہے، انڈیا کو ٹھوں ٹھوں کر رہا ہے، تو بہت خوش ہے جی. عمران خان یہ کر دے گا، عمران خان صدر بن جائے گا. یہ اسٹوپیڈٹی ہے. ہاؤس فرام ان سائڈ پاکستان بیوروکریٹس نے کھوکھلا کر دیا ہوا ہے. وہ 2 لڑکیوں کا کیس جن کو برہنہ کر کے 20 آدمی، ٹھیک ہے جی، 20 آدمی، ان پر دہشت گردی کا کیس نہیں بنا. اس کو زرداری نے، نواز گانڈے نے اور ان سب نے بیوروکریٹس نے ڈاک کر ہی رکھا. بہت ظلم ہے. آج میں چوتھا ایلیمنٹ بیوروکریٹس کو قابو کرنے کا بتاؤں گا. آپ کو کوئی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اینٹی کرپشن، چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم، احتساب، وہ طاہر شہباز کنجر حرام زادہ سی ڈی اے میں فراڈ کر کے دلہ، وہ احتساب کا ڈی جی ٹو جی بنا ہوا ہے. کیا ہے یار، اندازہ لگائیں. وہ کمالہ طارق، وہ اس کو ساتھ جفیاں ڈالتے، یہ پولو گراؤنڈ میں واک کرتے تھے. ہمایوں اختر پھر وہ خواجہ آصف لیتا تھا 10 کروڑ اس نے دے کے جان چھڑائی. وہ اب کوئی اس کے وہ یار ویمن امبڈسمین، کمال ہے یار. ویسے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. کل جناب ادھر اوورسیز کمیشن کا وائس چیئرمین ایک لندن سے ڈاکٹر شاہد مسعود ٹٹا سا، وہ اندازہ لگاؤ نیورولوجی کا ڈاکٹر، اس کی آپ پہلی ٹویٹ دیکھیں، اس کا آپ پہلا میسج دیکھیں. ویری تھینکفل ٹو عمران خان، ویری تھینکفل ٹو وہ پریویس چیئرمین کنجر، پیسے کھا کھو کے حرامزادہ. وہ عمران خان کے ٹٹوں میں گھس گیا، ادھر پرائم منسٹر کا پتہ نہیں دلہ سا کیا بن گیا اوورسیز کے لیے. ویری تھینکفل ٹو طاہر کے پتہ نہیں کیا ہے. ویری تھینکفل ٹو عثمان بزدار. میں نے خادم شاہ کمشنر کو کہا، ابھی کسی سا زنانہ سا، میں نے کہا چل مر اس کے پاس کل صبح، کہہ کہ تو اوورسیز کا. ادھر آج میرا جون سا ٹاپک ہے نا، میں آپ کو بتاؤں گا ان کا مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا. میں نے پہلے آپ کو بتایا اے سی آر، دوسرا میں 10 تک ریکیپ کروں گا کیونکہ میں نے 100 بتانے ہیں طریقے ان کو پٹا ڈالنے کے، تو وہ پھر ریکیپ شاید 100 ایک دم نہ ہوتے ہوں، تو وہ میں 10 کر کے کرتا رہوں گا. پہلا اے سی آر کا کیا، دوسرا ان کا پرفارمنس آڈٹس کا، ان کو پرفارمنس ٹاسکس دیں ان کو، اور نمبر 3 میں نے کل دیا تھا کہ ان کے جو ایسٹس ڈکلیئرڈ ہیں اس پہ ان کو بلا لے. آؤ جی کھوکر صاحب، بچے ادھر آؤ، مرو، پہلے تو ان کی منی ٹریل دو. قاضی فائز ایسا کی بونڈ کے پیچھے گھومتے پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک اور ان کو طریقہ پٹا ڈالنے کا. ان کا مائنڈ سیٹ چینج کریں. ان کا مائنڈ سیٹ ہمیں غلام بنانے کا ہے. وہ ایک رعوف ہوتا تھا عجیب ہی دلال سا، دلہ سا، فراڈ سا. مجھے کہتا ہے میں نے بیٹے کو سی ایس پی، میں کہ یہ تو یہ جملہ نہیں ہے، وہ یہ بنے گا. وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں پہلے چلا گیا، وہ نہیں جی بنے گا. اس نے ایک اکیڈمی بنا لی، ادھر بورڈ میں تعلق، فلاں ممبر ہے. اس نے ہر ممبر پبلک سروس کمیشن کو 10 کروڑ روپیہ دے کے اپنا بیٹا شعیب پولیس میں کرا دیا. اس نے بتایا، دیکھیں نظر چاند، میں آپ کو کہتا تھا 10 کروڑ روپیہ دے کے کیوں آئے ہیں یہ پولیس میں. اور جناب ان کا آپ مائنڈ سیٹ چینج کریں. اچھا وہ پولیس میں آیا، باہر بہت بڑا بڑا لکھ دیا شعیب رؤف، یہ نام رؤف لکھتا ہے یا احمد عمر لکھتا ہے، کا گھر. ٹھیک ہے جی، شعیب رؤف ایس ایس پی. وہ بہن چود ابھی ایس پی انڈر ٹریننگ بھی نہیں. شعیب رؤف ایس ایس پی. وہ یار ادھر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے پاکستان میں بابا. ادھر تو کھلی لٹ پڑی ہوئی ہے یار. ان بیوروکریٹ حرام زادوں نے ہمیں ننگا کر کے ٹھڈے مارے. وہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج کریں. کل جناب ایک وہ میری انکوائری ایک پورٹل پہ ہے، اور اوورسیز کمیشن نے تو دلوں نے کیا چلانی تھی، انہوں نے بھی ویسے چلائی ہے کہ ایک اوورسیز خاتون کے ساتھ بدتمیزی ایک ایس پی رینک آفیسر نے کی.
मैंने आईजी को पोर्टल पे लिखा कि ये उसने बदतमीजी की है, ये अल्फाज कहे हैं कि जी गन संभालें। ये 4 मेरे सवाल हैं। आईजी साहब, आई वांट आंसर फ्रॉम नन अदर देन यू। फाइन सिटीजन प्रो, वो आईजी फौरन ही उसे बुला के एजाज रशीद को जवाब दे सकता था। ठीक है ना जी, बड़े सादा से सवाल थे। मतलब मैंने एक कहा था जी कि अगर गन संभालनी है तो ये नौकरी क्यों कर रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल था कि जनाब साहब, अगर फिर इसका मतलब हम सब वापस हम खुद ही फिर ये थापा थापी करते फिरें। तीसरा, ओवरसीज खतून के साथ ऐसे तरीका करते हैं। चौथा, क्या बिलावल ठीक नहीं कहते हैं कि ओवरसीज को कोई राइट्स नहीं है। ठीक है ना जी, वो इधर आए, मरे और करें। ये को 2 हफ्ते की बात है। आईजी साहब ने भेज दी डीआईजी को। डीआईजी का एक वो पीएसओ तो नहीं था, कोई पीए टट्टा सा, आप नजर चौहान किधर है, इधर है, मरे किधर है, ये वो। और मैं कहा मैं इधर हूँ, आराम से मेरी बात सुनो। ओ नहीं जी, हमने और भी केस है, चल जा दफा हो। मैं कहा फिर जी वो चली गई एसएसपी ऑपरेशन के पास। मैंने फिर एहतजाज किया कि उसी रैंक के पास चली गई है। फिर जी मेरे सीसीपीओ के कोई वो डीएसपी इंटेलिजेंस हैं कोई, वो बहुत बड़ा अपने आप को वो लॉर्ड माउंटबेटन का पोता समझता है। ठीक है ना जी, वो मेरे टोनरा, मेरे पावर ऑफ टोन, आओ जी सीसीपीओ को। उसने कहा बताएं तो सही क्या है, सारा है। मैंने उसे कहा बिल्कुल ना जाए। कल मैंने उसका नंबर लिया, उस लॉर्ड माउंटबेटन के पोते का, रेहान है कोई नाम उसका। तो मैंने कहा जनाब इस तरह करके मामलात है। मैंने उसे रोका हुआ था। अगर आप उसमें से, मैंने तो आईजी के लिए कहा था, अगर आप सीसीपीओ के पास पेश कर दें तो मैं तैयार हूं। ठीक है जी, उसको मैं भेज दूंगा। चुप रहा, पहले भी मैसेजेस में मेरे चुप रहा। आखिर में एक आता है, मिस्टर नजर, आई हैव बीन आस्क्ड टू कॉल you for through I have to present your power of attorney to CCPO। फिर उर्दू में, अगर आप नहीं आएंगे यक तरफा कार्रवाई होगी। मैंने उसके नीचे लिखा है कि यार ये मिस्टर नजर आपने क्यों लिखा है, कोई जनाबे वाला, कोई इस तरह। हम तो दुख भरे लोग हैं। हमारे में से जो दल्ले और कंजर ओवरसीज थे, उनको तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इमरान खान ने अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर को बना दिया। उसको तो इमरान खान ने जनाब साहब स्टेट बैंक का गवर्नर लगा दिया। वो नजर चौहान हमारे में से रॉयल ब्लड का सही सच्चा इंसान था, उसको तुन रहे हैं। कल मैडम को खत लिखा कि मैडम ये मेरी बेगम को हैरेसमेंट आ रही है। मैंने टोनी बुकर से बात, वो कोरी बुकर से बात की है, सेनेटर से, एम्बेसी से बात की है। यार आप भी कुछ करें। वो मैडम ने तो मुझे बहुत पहले कहा था कि अगर आप यूएस सिटीजन बन के आएंगे हम टूई मारेंगे तुम्हारी। मैडम ने कोई ईमेल का जवाब नहीं दिया। अब कहना ये आस्क दिस मैडम कॉन्सुलेट, ये अपने आप को हीरो समझती है। इसको तो मैं, ये मसूद साहब एम्बेसडर आ जाए ना, इसकी मैं तबीयत ठीक कर दूंगा। सिर्फ शाह महमूद से दोस्ती की बिना पर। मैं बातें खोलना नहीं चाहते हैं कि वो दोस्ती है क्या। ये शाह महमूद ने कुछ लड़कियां फॉरेन ऑफिस में सवार कर दी हैं, वो अपनी रखेलें, वो जिस तरह ये मुल्तान में हरामजदगी करता है कुत्ता। हाँ, इमरान हैज ब्रॉट मसूद ए ग्रेट ब्यूरोक्रेट। ठीक है ना जी, मसूद इज नोन टू मी ऑल्सो। मैं रावला कोर्ट जाता था, वी विल मीट मसूद, विल टॉक टू हिम। पहले तो एवं चपड़ वो कहता था मैं जी लॉर्ड फ्रांसिस हूं। बहन चोद, ये लॉर्ड नजीर को उन्होंने नंगा करके वो टूया मारा है उसका। अच्छा जी, उसने, मैंने कहा आपने मिस्टर कैसे, कहते हैं गालिबन आपको पता नहीं है, मिस्टर को उर्दू में जनाब कहते हैं। हम कहते होते हैं किसी के गर्मी खानी हो, मिस्टर इधर आओ मिस्टर। ठीक है ना जी। तो मैं बड़ा आसा, मैंने उसके नीचे लिखा कि जनाब ये आपका पोर्टल पे जवाब है। रिस्पेक्टेड सिटीजन लिखना है इमरान खान का, आपने रिस्पेक्टेड सिटीजन से एड्रेस करना है और नीचे रिगार्ड्स लिखने हैं। ओ फरासत शाह मेरा कोई जवाब नहीं देता है व्हाट्सएप पे। मैं इस तरफ भी आऊंगा कि माइंडसेट कैसे ठीक करना है। दे डू नॉट गिव रिप्लाईज इस वक्त व्हाट्सएप पे। आई विल हैव टू क्रेडिट जो बंदे जवाब देते हैं, जो इंटरैक्ट करते हैं, जो अप फ्रंट है। मुमताज शाह मेरा बैचमेट, चीफ सेक्रेटरी सिंध, जैसा भी नीचे जरदारी ने गंद किया हुआ है, बेचारे को मुश्किलात डाली हुई है। ठीक है, लेकिन ही इज अप फ्रंट, ही विल रिप्लाई टू यू कि ये क्या गंद है, क्या हो रहा है, मैं क्या कर सकता हूं वो। लेकिन वो बेचारे बेबस हैं। वो डायरेक्टर एंटी करप्शन को कह रहे केस में, वो डायरेक्टर एंटी करप्शन जनाब
टिल का वो एक इंस्पेक्टर जरदारी को शराबें सप्लाई करता है कामरान, वही जनाब साह नहीं ले रहा है, ठीक है ना, वो कहता है पुट लो मेरा पुट। और जैसे फरासत सेक्रेटरी डिफेंस इसका सगा है, वो कहता है पुट लो मेरा पुटना, ठीक है ना, क्वार्टर मास्टर जनरल के पास मेरी दरखास्त पड़ी है, ठीक है ना जी। तो जनाब साहब, अच्छा हाँ, एक मुमताज शाह, एक इमरान गुलजार और मुमताज शाह अपनी डीपीज के साथ आते हैं, अपनी फोटोग्राफ या पाकिस्तानी फ्लैग के साथ आते हैं। अच्छा, बाकी विदाउट डीपीज हैं लेकिन वो जवाब देते हैं। इधर से एक बहुत ही खूबसूरत इंसान, अल्लाह ताला ने खूबसूरती भी बड़ी दी है, अजमत है, ट्रेड कमिश्नर है पाकिस्तान का, फौरन आपको जवाब देगा कि जी ये मसला है, ये है नजर साहब, आपने ये ट्रेडिंग करनी है, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है जी। और कोई 2-3 है, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, वो आपको जवाब देंगे। वो ये फ्रासत जवाब ही नहीं देते हैं, जैसे कि हाँ, खादिम शाह ओवरसीज का, उसको आप कुत्ता बिल्ला कंजर हरामी कहते हैं, वो कोई ढीठ हड्डी का बना हुआ पीसीएस ऑफिसर है, वो जवाब जरूर देगा। जहांगीर बारा जरूर जवाब देगा, डिप्टी कमिश्नर नहीं जवाब देगा, कोई बाकी बंदा कोई जवाब नहीं देगा। अच्छा जी, उस पे पोर्टल पे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सिटीजन, नीचे लिखेंगे रिगार्ड्स, इधर लिखेंगे मिस्टर नजर कम देयर थ्रू पीओए, इफ यू डोंट कम टूहा मारेंगे हम आपका। वो मैडम कॉन्सुलेट पूछो इससे कुत्ती से, ये क्यों नहीं जवाब दे रही है जब मैंने SOS उसकी हेडिंग लिखी है। वो यार, हम ओवरसीज पाकिस्तानियों में भी डिस्क्रेशन है। वो एक कंजर से डॉक्टर को, रामजादे को, शाहिद मसूद को, कुत्ते को बैठा दिया, मैंने खादिम शाह को कहा दे इसको मेरा केस, बहन चौथ को, वो सरवर शाह टुहिया मारने के लिए इन औरतों की। वो यार, पाकिस्तान को इन लोगों ने चकला बनाया हुआ है, ये पैसे यूसर्व कर रहे हैं, वही ब्यूरोक्रेट्स के पीछे पड़े, वही छोड़ दें सियासतदानों को, छोड़ दें आइडियोलॉजी मीडियोलॉजी मुल्ले लबैक, और दफा करें जिधर से ये निकले थे जमात इस्लामी और सारे, सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स की टुहिया मारें। जनरल फैज हमीद के लिए तहरीक चलाएं, जनरल फैज हमीद को मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर लगाएं, कड़ा एहतसाब करें, थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ $US जिस ब्यूरोक्रेसी से निकलेगा। वही आपने यार तबाह बर्बाद कर दिया, लोगों को ठुड्डे मार मार के, टुहिया मार मार के, वो वकीलों ने क्या हशर कर दिया। तो जनाब साहब, ये आज का मेरा चौथा में, इनके माइंड, हाँ, इनसे कारें ले लें, इनसे घर ले लें, कारें ले लें, इनके कोई पीएन ना बाहर हुआ करे, इनके पास सिर्फ फैसिलिटी जो हो ना जनाब, सिर्फ फैसिलिटी जो हो इनके पास, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास हो, जिनकी रनिंग ड्यूटी है। लाहौर में भी ये जो कट्टे शटोंगे इंचार्ज, वो माना डीजी रिसर्च, माने से ले लें कारें शारें, गाड़ियां शाड़ियां प्रोजेक्ट्स की जितनी हैं वापस ले लें सारी, ठीक है ना जी। ओ टेक देम बैक, पेट्रोल का बड़ा खर्चा बच जाएगा। और 2000 अरब रुपया तो पेंशनों में जा रहे हैं दलों का, आर्मी भी खैर उसमें शामिल है। 2000 अरब रुपया ऑफ द 5000 अरब बजट पाकिस्तान का, वो इसको मजीद तो बचाएं यार, वो इनकी तादाद 1/10 कर दें, इनको फर्क करें। ये कॉन्सुलेट ये 10-10 हजार $, वो ओबामा $7,000 के घर में रहे, वो ये इनको तौफीक नहीं हमें ईमेल पे जवाब दे सके, ये अपने आप को समझते क्या है। तो इनका माइंड सेट ठीक करें। ये हमको गुलाम समझते हैं, ये हमको नौकर समझते हैं, ये समझते हैं इनकी हम टूही मारेंगे। और नजर चौहान एक काफला है क्रॉस बॉर्डर्स पे इकट्ठा करेगा जो तुम ब्यूरोक्रेट्स की टूही मारेगा। मैं आपको बता दूं, जैसे अरब स्प्रिंग हुआ था, इस तरह क्रॉस बॉर्डर्स में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मुतारिक नौशाबा अंजुम है एक क्यूरेटर, हालांकि वो नौकर, सरकारी नौकर है, डायरेक्टर ने हशर, उसने एक बात की जिसपे मैं खत्म करूंगा। उसने कहा, एक सिक्के का किसी ने मुझे कहा कि इसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में एंटिक्विटी में कहती है कि पूरे अमेरिका के 1 साल के बजट जितनी है। कहती मैंने ठुड्डे मार के उसे बाहर निकाल, जनाब नहीं उनको चूमे चाटे, उनको म्यूजियम के डायरेक्टर जनरल बनाए, डायरेक्टर टू ऐसा OSD, जिसको OSD बनाना है उसको प्रोफेशनल पोस्टों पे लगा के चलो तो खा पे ला। अपना बहुत ख्याल रखें। अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने